Rajat Sharma, a legendary figure in the world of media, is best known for hosting the immensely popular, iconic show Aapki Adalat. नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है, which has captured the hearts of audiences worldwide for an astounding 30 years. Rajat Sharma, the man who wields his questions like a magic wand. अगर कभी अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे. Interacted with renowned personalities from both India and around the globe with an infectious smile. His courtroom has witnessed the interrogation of celebrities from every walk of life. A tradition that continues to captivate audiences to this day. The global popularity of Aapki Adalat and its host Rajat Sharma is reflected in his world #1 position among TV news personalities on Twitter with an astounding 10.8 million followers. Rajat Sharma is a masterful interrogator who takes you on a journey like no other. He has dared to question over 1,000 prominent personalities, from esteemed political leaders to dazzling film stars and renowned celebrities. His relentless pursuit of truth knows no bounds. भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए. जितनी भी मोदी की जांच करनी है तो तत्काल कर ले, मुझे अच्छा लगेगा. With Rajat Sharma at the helm, laughter, tears, and well-kept secrets are all part of the ride. Icons, stars, and figures that ignite controversy. His guest list is an endless roster of noteworthy individuals. Aapki Adalat was already a nationwide sensation when Rajat Sharma took the helm in 1993. Over the years, it has garnered even more fame and name. With luminaries like President Pranab Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi gracing its stage on the show's 21st anniversary. मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूं. ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका, और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं है, और उन्होंने इसे किया. Notably, it was on this platform that all three Khan superstars, Salman, Shah Rukh and Amir Khan, appeared together for the first time on national television. The impact of Aapki Adalat is undeniable. Icons like Swami Ramdev and Shah Rukh Khan openly acknowledge how the show played a pivotal role in their rise to stardom. मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया. Former President of India, Pranab Mukherjee, urged him not to change his role. This program has manifested the strength of our democracy. And please, do not change your role to be the public prosecutor of the people of India. Ladies and gentlemen, it's a matter of pride, pleasure and honor for all of us that Rajat ji is here amongst us. Please welcome him with a big round of applause. तालियां थोड़ी और जोरदार होंगी तो बातचीत में उतना ही मजा आएगा. तो स्वागत है रजत जी. बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कई बार दूसरी इंडस्ट्री के लोगों का इंटरव्यू करना आसान होता है, जब आप अपनी इंडस्ट्री के इतने सीनियर व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आई एम ऑल्सो नर्वस टुडे, सो प्लीज पार्डन इफ आई मेक मिस्टेक्स. आज मैं सोच रही थी कि आज की दुनिया में हम लोग बहुत
बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत पसंद करते हैं उन लोगों को जिनका हम आज देखते हैं कि वो किस मुकाम तक पहुंच गए हैं, या उनके पास कितना पैसा है, कितना पावर है, कितना नाम और शोहरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम आज के साथ साथ अगर बीता हुआ कल देखें और उनकी पूरी जीवन यात्रा देखें, तो फिर हम सिर्फ उन्हें पसंद नहीं करेंगे, हमारे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत सम्मान हो जाएगा। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है, रजत शर्मा जी। बहुत कुछ है इनकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन चूंकि समय की पाबंदी है तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा आई वुड लाइक टू touch upon a lot of things because we want to talk about leadership, we want to talk about entrepreneurship, life. Rajat ji, you are a classic, probably a perfect example of rags to riches, of hard work, sincerity, commitment, entrepreneurship, and I think the list is endless. लेकिन अगर सबसे पहले पूछूं कि 10 by 10 के कमरे में जहां 10 लोग रहते थे, वहां से आज आलीशान घर, आलीशान दफ्तर, नेम फेम मनी सब कमाने के बाद जब आप कभी पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप अपनी लाइफ जर्नी को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि कितना आगे आ गए, कितने लोग पीछे हैं। लेकिन फिर आगे देखता हूं, फिर दिखता है कि कितने लोग आगे, अभी कितना रास्ता तय करना है। और ये स्ट्रगल है जो सबकी जिंदगी में होता है, और मैं हर वक्त इसको महसूस करता हूं। ये ठीक है कि एक ऐसा जगह थी जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था आप सफल हो सकते हैं, फिर इस मकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी बहुत रास्ता तय करना बाकी है। क्या सपने अभी भी आप देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को आपके अदालत में बुलाना चाहता हूं। क्या बात है। आप मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हैं कि बड़े सपने देखो, द सीक्रेट? मैं इसमें बिलीव करता हूं कि एक दो तरह के सपने होते हैं। एक सपने वो जो आप रात में सोते हुए देखते हैं, और एक सपने वो जिन्हें पूरा करने के लिए आपको रात को नींद नहीं आती। तो मैं समझता हूं हम सबको वो सपने देखने चाहिए जिन्हें पूरा करने के लिए रात को नींद आए, और मैंने ऐसे ही सपने देखे हमेशा। चलिए, तो हम सब लोग आपको दो भूमिकाओं में देखते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी अदालत सबसे ज्यादा पॉपुलर शो है, एज अ जर्नलिस्ट एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इतना बड़ा आप एक चैनल चला रहे हैं, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल। कौन सा रोल आपके दिल के ज्यादा करीब है, या कौन सा दिन के ज्यादा घंटे और ज्यादा मेहनत आपकी लेता है? जो मीडिया है, इसमें काम करना, आपकी अदालत की शो करना, आज की बात का शो करना, स्टोरीज करना, रिपोर्टिंग करना, एडिटिंग करना, ये मेरा पैशन है, ये मेरी जान है। मैं मानता हूं कि जो भी पहचान मिली, मान मिला, सम्मान मिला, वो इसकी वजह से मिला। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, फाइनेंशियल काम है, ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि मुझे इस रास्ते में चलते चलते एक दिन ऐसा लगा कि अगर अच्छा जर्नलिज्म करना है, उसके लिए इंडिपेंडेंस जरूरी है, फ्री फेयर फियरलेस होना जरूरी है। और अगर आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए अपने मन से काम करने की, उसके लिए फाइनेंशियल ताकत अपने पास होनी जरूरी है। फाइनेंशियल ताकत के बगैर वो फ्रीडम किसी काम की नहीं है। जब तक आप दूसरों पर डिपेंडेंस है फाइनेंसेस के लिए, दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, तो आप आजाद नहीं हो सकते। और ये मैंने सीखा, और उसके बाद फिर इसको करके दिखाया कि अपने हाथ में एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट चैनल जो अपने दम पर चल सकता है, जिसमें मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे ये ताकत दी है कि मैं अपनी बात बिना डर के, बिना किसी खौफ के और बिना किसी बायस के कह सकूं। ये ताकत उससे मिली। जी, चैनल की और शो की यात्रा पर मैं आऊंगी, लेकिन रजत जी, फॉर दोज हु डोंट नो, वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका बहुत लंबा 3 घंटे का इंटरव्यू यूट्यूब पर है, जरूर देखें और आपको बार बार देखने का मन करेगा। लेकिन रजत जी, थोड़ा सा अगर आपके बचपन की हम बात कर लें, कितना ज्यादा संघर्ष था उसमें? अब आपको बता देता हूं, वो ऐसा सेक्सी लाइफ नहीं थी जैसी अभी ये पर्दे पर आप लोग देख रहे थे। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी का इलाका है, उसमें एक
बड़ी पतली सी गंदी सी गली एक मकान तक जाती थी। 2876 आर्यपुरा सब्जी मंडी उसका एड्रेस था। उसमें तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, 10 बाय 10 का कमरा था। और उस 10 बाय 10 के कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक बीमार मां और एक बीमार पिताजी, 10 लोग उसमें थे। उसमें ऋचा इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पे सब लोग एक साथ सो सकें। तो जैसे कपड़े की दुकान में वो थान रखने के लिए स्टैक्स बना देते हैं, ऐसे वो लकड़ी के तख्ते लगाए हुए थे और रात में वो तख्ते खोल देते थे, उसके ऊपर एक एक करके सोते थे। और कभी कभी उससे नीचे गिर भी जाते थे। आज तो बारिश हमें बड़ी अच्छी लगती है, हम उसको सावन कहते हैं, उस पर गाने सुनते हैं। तब जब बारिश आती तो बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि ऊपर से छत टपकती थी, सारी सारी रात बैठे रहना पड़ता था। घर में जो भी बर्तन थे वो सब जगह जगह जहां पानी टपक रहा है उसके नीचे लगाते थे। एक एक, अब आप पूछ रहे हैं तो वो एक एक दिन मुझे याद आ रहा है। घर में बिजली नहीं थी तो मैं पढ़ने के लिए पास के रेलवे स्टेशन पर, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन है, वहां पढ़ने जाता था, क्योंकि वहां तो 24 घंटे बिजली थी। घर में पानी नहीं था तो गली के नुक्कड़ पे एक सरकारी नल था, जिसपे हम सातों भाई नहाते थे और 2 बाल्टी पानी, एक मां के लिए और एक बहन के लिए वो ले आते थे। जब वो नहाती थी तो हम फिर उस कमरे के बाहर छत पे धूप में खड़े रहते थे और फिर वापस जब वो नहा लेती थी तो अंदर आते थे। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और उस जमाने में मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को पता होगा, अमेरिका से गरीब लोगों के लिए पाउडर का दूध आता था। तो हम लाइन में खड़े होकर वो पाउडर के मिल्क के डिब्बे ले आते थे और कई कई दिन वो गर्म करके वो दूध पी के काम चलता था। स्कूल ऐसा था जिसमें वो टाट पट्टी पर बैठते थे। वो चैरिटेबल स्कूल था, 9 पैसे फीस थी, ना कोई पढ़ाने वाला था ना कोई पढ़ने वाला था। लेकिन वो सब रास्ता इसलिए तय हो गया कि हमारे जो पिताजी थे, बाबूजी थे, वो बहुत हिम्मत देते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आंख में आंसू क्यों है? तो मैंने कहा, बाबूजी खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अब आप कह रहे हो कि। तो उन्होंने कहा, देखो अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे घर होता, कपड़े होते, पैसा होता, गाड़ी होती, खुश रह लेते तो कौन सी बड़ी बात थी। संघर्ष में, तकलीफ में, अभाव में, गरीबी में खुश रह के दिखाओ, ये चैलेंज है। तो तब जो वो बच्चा रजत शर्मा था, वो सपने क्या, तब क्या सपने देखता था? कुछ ऐसा सोचा था कि यहाँ पहुंचेंगे कभी? नहीं, उस समय सपने क्या थे? उस समय सपने ये थे कि उस समय हायर सेकेंडरी होती थी, 11वीं क्लास पास कर लें और फिर किसी तरह से बीकॉम कर लें और बैंक में नौकरी मिल जाए, क्योंकि बैंक में ओवरटाइम बहुत होता था। तो इतने पैसे कमा लें कि घर वालों को 2 वक्त रोटी मिल जाए, मां का इलाज करा सके, ये इससे ज्यादा कोई सोच नहीं थी। मैं 8 साल का था जब हमारी मां की डेथ हो गई थी और बीमारी की वजह से इलाज नहीं करा पाए थे, इस वजह से। तो ये तकलीफ जरूर थी। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि ये संघर्ष, ये तकलीफ, यही आपको रास्ता दिखाती है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जो जीवन में मुश्किलें आती हैं रजत जी, जो संघर्ष होते हैं, उनकी वजह से हम जो बनते हैं वो बन पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने अपने जीवन की मुश्किलों से, चाहे वो बचपन की हो या बाद की भी, क्या सीखा है और हाउ डिड दे शेप अप द रजत शर्मा दैट वी सी टुडे? मैंने ये सीखा कि जीवन में हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमारे देश की मिट्टी में ये खास बात है कि गरीब से गरीब आदमी को अवसर मिलते हैं। उस अवसर को सफलता में कैसे बदलना है, ये हमारे ऊपर है। अगर हमने सही वक्त पर सही मौके को सफलता में बदल लिया, हम बन जाएंगे। अगर हमने मौके को हाथ से जाने दिया तो पछताते रह जाएंगे। मुझे जब जब जो मौका मिला, मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और इसीलिए आज मैं यहां आपके साथ बैठ के सब बात कर पा रहा हूं। क्या इन मुश्किलों ने आपको ज्यादा संवेदनशील इंसान भी बनाया, ऐसा लगता है आपको कभी? क्योंकि आप समझ पाते होंगे कि दूसरों के संघर्ष। हाँ, इतना जरूर है कि जो गरीब आदमी है, जो अभाव में रहता है, उसकी तकलीफ क्या होती है, उसको मैं समझता हूं।
और अब चूंकि इस मकाम पर पहुंच गए हैं तो जिसके पास पैसा है उसकी तकलीफ है वो भी समझता हूं। सक्सेस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है रजत जी, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी यात्रा बस अकेले पूरी कर ली और जो कुछ है वो अपने दम पर बन गए। लेकिन आपकी जब हम बातें सुनते हैं तो मुझे लगता है आप हर उस व्यक्ति को श्रेय देते हैं जिसने अलग अलग जीवन के पड़ाव पर आकर आपका साथ दिया। सबसे पहला व्यक्ति लेकिन क्या आपको लगता है वो अरुण जेटली जी थे? और मैं चाहूंगी अगर वो सब आप शेयर करें इंसिडेंट। अरुण जेटली मैं जरूर कहूंगा कि वो मेरे जीवन में एक एक्सीडेंट की तरह आए और उन्होंने मेरा जीवन बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनको मिलने के बाद में मैंने बड़े बड़े सपने देखे। उनको मिलने के बाद में मेरा दुनिया को देखने का तरीका बदला। और मैं आपको बताऊं कि उनसे मुलाकात भी कैसे हुई थी। मैं चूंकि हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स आ गए थे, मेरिट लिस्ट में नाम था, तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। उस समय नहीं पता था इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बस ये पता था ये इस कॉमर्स का सबसे अच्छा कॉलेज है, यहां से बीकॉम किया तो नौकरी पक्की। मैं लाइन में खड़ा था फीस देने की, तो मेरे पास में जो इकट्ठे किए हुए पैसे थे 2-2 रुपए 5-5 रुपए के, और उसमें कुछ सिक्के भी थे, वो थे। तो अकाउंटेंट थोड़ा चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। उन्हें शायद कुछ ऐसे भी शब्द इस्तेमाल किए, ये भिखारी आ जाते हैं, ये श्रीराम कॉलेज है। और किस्मत ये थी कि जब वो काउंटिंग की उन्होंने, उसमें से 3 रुपए कम थे, तो वो बहुत जोर से चिल्लाए मेरे ऊपर। और मैं जानता था अगर अभी फीस जमा नहीं हुई, रसीद नहीं मिली, तो फिर एडमिशन नहीं होगा। उस समय पीछे से एक आवाज आई, उन्होंने कहा अकाउंटेंट को कि चोपड़ा साहब कोई फ्रेशर से ऐसे बात करते हैं, ये क्या तरीका है? फिर पीछे देखा कि एक आदमी व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, ब्लैक बेल्ट, यहां तक की कल में, हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग मैन, वो अरुण जेटली थे। उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाला, अकाउंटेंट को दिया। मैंने कहा नहीं, बोले अब पहले फीस जमा कराओ, उसके बाद रसीद लो। रसीद लिया और फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो अकाउंटेंट के ऑफिस से मुझे कैफेटेरिया तक लाए। मुझे कहा अब तो तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं है। और रास्ते में उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया, अच्छा आप कौन से स्कूल से आए हो? तो मैंने कहा रामजय स्कूल से। हिंदी मीडियम? मैंने कहा हाँ। अच्छा तुम्हारे स्कूल से कितने आए हैं? तो मैंने कहा जी 9 लड़के हमारे स्टूडेंट से आए हमारे यहाँ से। और भी जानते हो? तो मैंने कहा रामजस के जितने इंस्टीट्यूशन से उनमें से आए हैं। तो कितने हो गए? मैंने कहा करीब 32 है। अच्छा सबको जानते हो? वो अपने वोट काउंट कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि स्मार्ट पॉलिटिशियन थे। हाँ, वो स्कैन कर रहे थे मुझे पूरी तरह से। और फिर कहा कि अच्छा तुम कैसे जानते हो? तो मैंने कहा जी मैं डिबेट्स में जाता हूँ, कविता लिखता हूँ। तो उन्होंने अच्छा तो तुम राइटर भी हो, लिख सकते हो? हाँ, स्पीच भी दे सकते हो। उनको दिख रहा था कई एक नेता अंदर छोटा सा पॉकेट एडिशन मिल गया है उनको। तो वो पूरा वो करते करते फिर मुझे कैंटीन में ले आए। उन्होंने चाय समोसे ऑर्डर किए और विजय कुमार गोयल कैंडिडेट थे। अरुण जेटली कॉलेज की यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे और विजय गोयल को चुनाव लड़वा रहे थे वो। तो फिर उन्होंने स्लिप भेज के बुलाया और मुझे फिर विजय गोयल को सौंप दिया। अभी मुझे यहाँ कोई मिले थे, वो कह रहे थे मैं रूपनगर में रहता था। तो वो जब विजय को मिले और पहली बार मैं रूपनगर में 4/7 4/7 उनका घर था, वहां गया मैं पहली बार। इतना बड़ा घर देखा मैंने। उनके फादर डिप्टी मेयर थे दिल्ली के। तो एक नया रास्ता मुझे दिखा और फिर मैं ये छात्र राजनीति में आ गया। जी, लेकिन उसके बाद आपने उसको पकड़ा नहीं। मैं नितिन गडकरी जी का कुछ टाइम पहले इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि 1975 में अगर इमरजेंसी नहीं लगी होती तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता। आप भी उस समय आप जेपी आंदोलन का हिस्सा थे, आप इमरजेंसी में जेल गए हैं, तिहाड़ जेल गए हैं, काफी दिन रहे हैं वहां पर, फिर आप पॉलिटिशियन क्यों नहीं बने? 2 बात आपको बताता हूं। एक तो इमरजेंसी का जो वो वक्त था वो एक अलग तरह का संघर्ष था, उसमें बहुत कुछ सीखने को था। और मेरा जर्नलिज्म का जो पहला स्टेप था वो इमरजेंसी थी। इमरजेंसी लग गई, मुझे आप मुझसे कितने लोगों को उसका अंदाजा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इमरजेंसी का मतलब था चारों तरफ पुलिस। इमरजेंसी का मतलब था पुलिस को देखते ही गोली मार देने के आदेश। अखबार नहीं थे, टीवी तो उस समय सिर्फ एक सरकारी टीवी था, उस पर सरकारी न्यूज आती थी, रेडियो था। किसी के पास खबर पाने का कोई जरिया नहीं था। देश के सारे बड़े बड़े नेता
जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, ये सब लोग जेलों में थे। अरुण जेटली भी जेल में थे, हमारे जितने भी संपर्क के लोग थे। तो विजय गोयल और मैंने अपना तरफ से एक अंडरग्राउंड आंदोलन शुरू किया। अंडरग्राउंड आंदोलन हमने क्या किया कि हमने कहा एक अखबार निकालते हैं। अब उसको हम अखबार कहते थे, था तो एक वो कागज का पर्चा और साइक्लो स्टाइलिंग मशीन होती थी उस जमाने में। तो साइक्लो स्टाइलिंग, तो उसके ऊपर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी, तो मैं बड़े बड़े उसके ऊपर खबरें लिखता था। फिर उसको हम एक शक्ति नगर में शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, उसमें साइक्लो स्टाइल निकालते थे रात में। तो वो 300-400 कागज निकाल के उनको लिफाफों में बंद करके और वो फिर हम लोगों के घरों में डालाते थे। तो हमें लगता था कि हमने क्रांति कर दी। ये क्रांति करते करते एक दिन विजय ने कहा कि मेरा घर पास में है, मैं जाके, अब पैसे भी खत्म हो गए थे, कपड़े भी नहीं सका, मैं कुछ धुले हुए कपड़े ले आता हूँ, कुछ पैसे ले आता हूँ और मम्मी से खाना बनवा लूंगा। पुलिस अब मेरे घर तो आएगी नहीं, क्योंकि पुलिस को पक्का पता है हम अपने घर में तो रह नहीं रहे, हम इधर उधर छुप के रहते थे। वो अपने घर गए कपड़े लेने और वहां पुलिस ने रेड की और मुझे पकड़ा और वहीं पर उन पुलिस वालों ने पिटाई की। वो सारे कागज जिसका जब्त कर लिए उन्होंने और फिर वो हाथ में हथकड़ी लगा के शक्ति नगर से सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन तक मुझे ले गए सब पैदल। और वहां फिर उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया, ये कहां से लाते हैं, कौन फाइनेंस करता है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं थे, क्योंकि कोई फाइनेंस तो करता नहीं था। वो शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज की मशीन थी, उन्हीं का कागज, उन्हीं की स्टेशनरी, वो सब यूज करते थे हम। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि कौन है तुम्हारा साथी। भाई मैंने कहा मैं और विजय गोयल 2 मिल के निकालते हैं। उसने कहा विजय गोयल कहाँ है? मैंने कहा वो तो अपने घर पे है। तो वो पुलिस ऑफिसर ने कहा अच्छा उनको फोन करके तुम उनको कहीं बुलाओ। तो मैंने फोन किया, मुझे मालूम था हमारा एक कोड वर्ड था। तो विजय ने फोन उठाया, तो मैंने विजय को कहा विजय दाल में काला है, और उसने कहा भाग जाऊं? मैंने कहा हाँ। तो जब वो पुलिस वाले वो सुना कॉन्वर्सेशन, फिर बहुत मारा, बहुत पिटाई। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पे बैठा दिया, सामने पांव बांध दिया, और ये मेरे आज भी पैरों में यहाँ निशान है। वो इसके ऊपर उन्होंने वो हंटर से मारा बहुत। तो वो जो अनुभव था ना, उसने बहुत ताकत दी। उसके बाद फिर जेल गए, करीब 10-11 महीने लोग जेल में थे और जेल में जीवन बदला। इतने सारे लोग वहां थे जिसमें बड़े बड़े लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे। हम लोग 13 नंबर वार्ड में थे। 15 नंबर वार्ड में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, प्रकाश सिंह बादल, ऐसे लोग थे। तो एक बैडमिंटन की टीम थी हमारे यंग लड़कों की, 13 नंबर की, एक 15 नंबर की इनकी, जिसमें चौधरी चरण सिंह बैडमिंटन की टीम के कप्तान थे। तो उनके साथ मैच होते थे। वो उन लोगों की बातें सुनना, ये करना। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। 17 साल में जेल जाना। और सबसे बड़ी क्या बात हुई, जब पुलिस वाले मुझे जेल में ले गए, तो क्योंकि मैं अंडर 18 था, तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बजाय एक जो टीनेजर्स का वार्ड, जिसको मुंडा खाना कहते हैं जेल में, उसमें बंद कर दिया। एक छोटी सी कोठरी थी, उस कोठरी के अंदर 12 लोग थे, जिसमें कानूनन 2-3 लोग रहने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मेरा ये बलकागंज से लेके और कमला नगर तक का बिजनेस है। ऐसा क्या बिजनेस है? कहता मैं वो मेरा जेब काटने का एरिया है। एक ने कहा कि मैं ये करोल बाग में मेरा अपना काम है। क्या? मैंने क्या काम है? कहता मेरा पानी के मीटर चुराने का काम है। तो वो ऐसे लोग थे जिनके साथ दो दिन काटे, फिर बाद में पॉलिटिकल बोर्ड में चले गए थे। लेकिन तब तक भी आपने ये नहीं सोचा था कि पॉलिटिशियन बनना है, नहीं बनना है? ये कंफ्यूजन था कभी मन में? पॉलिटिक्स किया मैं आए, उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन थे। तो विजय गोयल ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, मैं उनके साथ सेक्रेटरी था और बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। पॉपुलैरिटी भी थी, नाम भी था। और उसी दौरान ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे। और उस सरकार को बनाने में हम लोगों ने बहुत पैशनेटली काम किया था। लगता था देश में एक बदलाव हुआ है। लेकिन जिस तरह से सरकार गिरी, जिस तरह से लीडर आपस में लड़े, उसने मुझे राजनीति के प्रति हमेशा के लिए डिसुएड कर दिया। और मुझे लगा कि राजनीति में अगर आना है तो आपको समझौते करने पड़ेंगे। राजनीति में अगर आना है तो आपको बहुत सारी बातें मन मार के करनी पड़ेगी। ये मेरा स्वभाव नहीं है। समझौते करना, झुकना, मन मार के काम करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए शायद एक नेचुरली जर्नलिज्म में आ गया। और आज लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, हम लोग आजकल बहुत पेरेंटिंग की बात करते हैं, इतने पेरेंटिंग काउंसलर्स होते हैं। जब रजत जी जेल में थे, इनके फादर ने जो इनसे एक बात कही थी, वो मुझे लगता है हर पेरेंट को जरूर
सुननी चाहिए, मैं चाहूंगी आप बताएं। एक्चुअली पहले दिन जब वो अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट में पेश करते तो वहां बाबूजी आए थे, मैं देख रहा था भीड़ में दूर खड़े हैं, उनको मेरे करीब नहीं आने दिया था। फिर वो जेल में मिलने आए तो उन्होंने देखा उस समय तो पट्टियां बंधी हुई थी, खून था, काफी चोट लगी हुई थी। तो मुझे लगा नाराज होंगे, डांटेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या लगता है जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? मैंने कहा बाबूजी मुझे लगता है यही रास्ता ठीक है। तो कहा कि फिर इस पर डटे रहो, पीछे मत हटना। कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, जिस चीज को तुम मानते हो कि यही रास्ता सही है, उस रास्ते से पीछे मत हटना। काश कि आज भी सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात सिखा पाए। एक्चुअली वो हमेशा कभी कभी ऐसे छोटी सी बात कह दिया करते थे, वो फिर बात बड़ी बन जाती थी बाद में। जैसे एक किस्सा मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि चूंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी तो पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते थे। एक जैन साहब थे, महिपाल जैन, उनके घर में टीवी था। तो और उस जमाने में जो टीवी पर फिल्म है, आधी फिल्म सैटरडे को आती थी, बची फिल्म संडे को आती थी। तो सैटरडे को हमने फिल्म देख ली, अगले दिन देखने गए, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बहुत देर हम खड़े रहे, खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला। मैं वापस घर आया, आंख में आंसू थे। तो बाबूजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आंख में आंसू क्यों? तो मैं कहा बाबूजी वो शहीद भगत सिंह की पिक्चर देख रहे थे, आधी देखी थी और उन्होंने आज दरवाजा बंद कर लिया, आने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो ऐसा करो तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। हाउ ब्यूटीफुल। और उन्होंने आपका वो सक्सेस देखा। उन्होंने फिर वो देखा। उन्होंने एक्चुअली उस समय तो कौन सोच सकता था कि उसमें कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जब बाद में आए तब मुझे उनकी बात याद आई। और फिर बाबूजी ने देखा, उन्होंने देखा कि एक बार वो बॉम्बे जा रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको प्लेन से भेजता हूं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊंगा, मेरी पुरानी आदत है। तो मैं स्टेशन पर उनको छोड़ने गया, तब आपके आदर शुरू हुए, करीब एक सवा साल हुआ था। तो मैं जैसे स्टेशन पर गया तो लोगों ने घेर लिया, और ये आज के तरह मोबाइल फोन तो नहीं थे, लेकिन वो लोग ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तो भीड़ इतनी थी और मैं देख रहा था बाबूजी वहां खड़े हैं, मैं वहां तक जा नहीं पा रहा था। तो मैंने लोगों से कहा भाई मुझे अपने फादर को सी ऑफ करना है, तो लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे और 4-4 लोग आ जाते थे। तो वो वहां से खड़े हुए हाथ हिलाए और उसके बाद वो ट्रेन चली गई। फिर बॉम्बे पहुंचकर उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि भाई आज बहुत चैन मिला मन को। रजत जी, बचपन इतनी तंगहाली में बीता, फिर उसके बाद जेपी आंदोलन, इमरजेंसी, इस समय भी बहुत संघर्ष रहा, पैसे नहीं थे। जीवन कंफर्टेबल, अगर मैं कहूं, कंफर्टेबल होना कब शुरू हुआ? और फिर वो पैम्फलेट से अखबार, अखबार से मैगजीन, ये सफर कैसे हुआ? असल में कंफर्टेबल तो आज भी नहीं है ऐसा। ये स्ट्रगल तो कंसिस्टेंट है, वो उसका लेवल बढ़ता जाता है, जितने बड़े होते जाते हैं वो उसका संघर्ष का लेवल और बढ़ता जाता है। और आज भी मेरे लिए जिंदगी उतनी आसान नहीं है। एक अपने आप को बनाए रखना उस पोजीशन पे मुश्किल काम है। लेकिन जो मैं कहूंगा जिसको आप कंफर्ट कह रहे हैं, मैं समझता हूं संतोष, काम से सेटिस्फैक्शन। मैंने जब प्रिंट में था तो बहुत स्टोरीज करता था, तब भी सेटिस्फैक्शन मिली, लेकिन तो भी मुझे लगता था मेरी बात बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। जो मैं कहना चाहता हूं, एक ऑनलुकर मैगजीन का एडिटर था, फिर बाद में संडे ऑब्जर्वर का एडिटर रहा, डेली न्यूज़पेपर में एडिटर रहा, लेकिन वो सबका एक लिमिटेड दायरा था। आपकी अदालत ने मुझे एक पहचान दी, आपकी अदालत ने मुझे एक नाम दिया, आपकी अदालत ने मान सम्मान दिया, और आपकी अदालत के जरिए मैं दुनिया भर के लोगों तक पहुंच पाया। वो बड़ा संतोष का टाइम था। एक पेशेंस और परसिवियरेंस, क्योंकि हम लोग कई बार थोड़ी कोशिश करके किसी चीज को छोड़ देना चाहते हैं। इंदिरा गांधी छतरपुर में एक मंदिर में आती थी, और वहां उनकी एक ही तस्वीर है जो रजत जी की खींची हुई तस्वीर है। वो प्लीज बताएं, कितने दिन आपने इंतजार किया? असल में जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था, तब गर्मी की छुट्टियां थी, तो सारे जो पहचान वाले थे कहीं ना कहीं छुट्टी पर चले गए थे, मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मैं एनए एमकॉम किया था, इंतजार कर रहा था रिजल्ट आएगा तो फिर मैं अप्लाई करूंगा, लेक्चरर बन जाऊंगा। कौन से साल की बात है? ये 1980 की बात। 80। तो उसी समय मैं समर जॉब ढूंढ रहा था। तो
किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जनार्दन ठाकुर से। जनार्दन ठाकुर उस समय आनंद बाजार पत्रिका के चीफ ऑफ ब्यूरो थे और दिल्ली में, और फिर उन्होंने आनंद बाजार की नौकरी छोड़ के एक अपना जैक एंडरसन तरह का सिंडिकेट कॉलम शुरू करने का प्लान बनाया था। तो उसके लिए वो रिसर्चर ढूंढ रहे थे। तो 400 रुपए महीना उन्होंने मुझे ऑफर किया। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो वो मुझे टेस्ट कर रहे थे, अलग अलग तरह के असाइनमेंट देते। तो बहुत सारी बातें थी उसमें, जो बात का आप जिक्र जिसका कर रही हैं, नवरात्र के दिन थे, जैसे आजकल के दिन है नवरात्र के। उन्होंने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि छतरपुर में जो बाबा नागपाल का मंदिर है, इंदिरा जी उसमें सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए आती हैं। उसकी एविडेंस चाहिए, उसकी तस्वीर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो पहला चैलेंज मेरे पास ये था कि सुबह 4 बजे मैं वहां पहुंचूंगा कैसे। मेरे पास तो कोई 3 व्हीलर से जाने के पैसे थे नहीं। तो मैंने एक तरीका निकाला, मैं रात को बस पकड़ के गया, जो लास्ट बस थी। 11 बजे मंदिर पहुंचा, वहीं सीढ़ियों पे सो गया। तो अब एक दिन सोया, 4 बजे सुबह उठा, मैं तो इंतजार करता रहा, कोई इंदिरा गांधी नहीं आई। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हर रोज मैं जाता हूं। तो मैंने ठाकुर साहब को मैंने कहा जी कोई इंदिरा जी नहीं आती वहां पर, ऐसे ही किसने आपको कह दिया? बोले नहीं आएंगी। 9th डे जो मेन पूजा का दिन था, उस दिन मैंने हलचल देखी वहां। तो मुझे याद है कि इंदिरा जी नंगे पांव, यशपाल कपूर उनके साथ थे, वो एक सफेद एम्बेसडर से उतरी। उस समय ऐसी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर वगैरह के आसपास नहीं होती थी, बहुत अलग तरह का जमाना था। तो जो मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था जिसमें वो रील लगती थी उस जमाने में, तो उससे मैंने वो तस्वीर खींची और मैं वो तस्वीर और फिर मैंने आकर के ठाकुर साहब को पूरा एक्सप्लेन किया कि वो ऐसे गाड़ी से उतरी, फिर इतने कदम अंदर गई, फिर उसके बाद गई, फिर पुजारी ने उनको स्वागत किया, फिर अंदर गई, फिर उन्होंने ऐसे पूजा की। तो वो डिस्क्रिप्शन सुन के वो, तो उन्होंने कहा यार तुम तो जर्नलिस्ट हो, अब तुम रिसर्चर नहीं हो। और फिर वो तस्वीर दी, वो तस्वीर छपी, तो उससे उनका बहुत नाम हुआ था। वो मेरे नाम से तो नहीं छपी थी, लेकिन वो एक पहला पड़ाव था जिसमें कहते हैं कि जिस आई टेस्टेड सक्सेस क्या होती है, वो जरूर। अच्छा, इमरजेंसी में सब इतना जो आपने झेला, उसके बाद आप इंदिरा गांधी जी से कभी मिले? एक ही बार मैं उनसे मिला 1984 में, जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। तो मैं 24 साल का था, यंग रिपोर्टर था, और हम लोग बहुत पंजाब जाके कवर करते थे, रिपोर्टिंग करते थे। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, अकाल तख्त टूट गया, तो सारे पंजाब में उन्होंने बैन लगा दिया था। मीडिया को जाने की परमिशन नहीं थी, कोई गोल्डन टेम्पल को जाके देख नहीं सकता था, और तरह तरह की अफवाहें उसके बारे में फैल रही थी कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया। तो शायद सरकार ने ये प्लान बनाया कि कुछ चुने हुए पत्रकारों को ले जाएं और उनको दिखाएं ये गोल्डन टेम्पल है, यहां से आर्मी घुसी थी, इतना नुकसान हुआ है, बाकी सब कुछ इंटैक्ट है। जो लिस्ट बनी वो मुझे पता चला, उसमें वो लोग थे जिन्होंने कभी गोल्डन टेम्पल को कवर नहीं किया था, जिनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं था। तो ये बात मुझे बड़ी खराब लगी। वो लोगों को ले जा रहे थे जो लोग उस समय कांग्रेस की बीट को कवर किया करते थे। तो और सब लोग जैसे तबलीन सिंह, कुलदीप नैयर, शेखर गुप्ता, ये सब वो लोग थे जो पंजाब की रिपोर्टिंग करते थे। मुझे मालूम है मेरे मन में क्या आया, मैं साउथ ब्लॉक गया और आर.के. धवन साहब के पास गया। धवन साहब को मैं थोड़ा बहुत पहले से जानता था, तो मैंने धवन साहब से कहा साहब मैं एक शिकायत लेके आया। उन्होंने कहा बताइए। तो मैंने कहा ये जो आप जर्नलिस्ट को ले जा रहे हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये अगर लिखेंगे भी पंजाब पर, ये लिखेंगे अगर दरबार साहब पर, ये टेम्पल के बारे में लिखेंगे, उसको कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कांग्रेस के लोग माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा जो लोग कवर करते रहे, जिनकी क्रेडिबिलिटी, उनको ले जाइए। और ये एक ऐसा मौका है जिनमें सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग सरकार के साथ हैं, सबका पैशन देश के साथ है। तो मुझे ध्यान है वो उन्होंने एक सफारी सूट सफेद व्हाइट पहना हुआ था और ऐसे सिगरेट पी रहे थे यहाँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनते सुनते फिर सिगरेट उनकी खत्म हुई, उसको स्टप किया, उन्होंने कहा 1 मिनट बैठो, और वो बाहर गए। मुझे नहीं मालूम था वो प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। तो 2-3 मिनट बाद वापस आए। तो उन्होंने कहा कि जो बात मुझे कही है वो आप प्रधानमंत्री से कह सकते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री मतलब इंदिरा गांधी? हाँ। उन्होंने कहा इंदिरा जी से कह सकते हैं। तो मैंने कहा कह दूंगा। तो वो मुझे ले गए, इंदिरा जी चश्मा लगाया हुआ था, ऐसे उन्होंने इससे ऐसे देखा मुझे, कहिए। तो मैंने वो सारी बात उनके सामने जोर जोर से रिपीट कर दी।
उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। अब मैं वही समझिए कि 1.5-2 मिनट मैंने बात की होगी। मैं वापस आया धवन साहब ने कहा आप कह दिया ना, देखो कुछ होगा। वहां से आईएनएस बिल्डिंग मेरा दफ्तर वॉकिंग डिस्टेंस कोई 10-12 मिनट था साउथ ब्लॉक से। मैं पैदल आ रहा था तो मेरे ऑफिस के लोग दौड़ते हुए आए। वो कह रहे थे कि वो HKL भगत साहब आपको ढूंढ रहे हैं, वो आईएनबी मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा मुझे किस लिए ढूंढ रहे हैं? मैं दफ्तर आया तब तक उनके 10-12 फोन आ चुके थे और मैं जब तक अपने ऑफिस पहुंचता वो गाड़ी से वहां पहुंच चुके थे। आप सोचिए छोटा सा कमरा था मेरा, 4x4 का जरा सा कमरा होगा। वहां आईएनबी मिनिस्टर आ गए और उन्होंने मुझे कहा यहाँ तूने मेरी शिकायत कर दी। तो मैंने कहा जी मैंने क्या शिकायत कर दी? तो उन्होंने कहा लिस्ट बनानी, किसको ले जाने बताओ, तुम लिस्ट बनाओ। तो फिर वहां बैठ के लिस्ट बनाई। फिर वो लोग प्लेन लोड हम लोग गए, मैं भी उसमें था। अकाल तख्त हमने देखा, उसके ऊपर रिपोर्टिंग की। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट है मैं कभी भूल नहीं सकता हूं कि वो कितनी पैशनेट थी इस बात को लेकर और कितनी समझदार थी। उन्होंने किसी एक अनजान रिपोर्टर की बात 1.5-2 मिनट सुनी और इतना बड़ा फैसला लिया, और जिसका वाकई में बाद में बहुत फायदा हुआ। इसका ये एक मैसेज ये भी है कि जहां बोलना जरूरी हो या लगे कि बोलना चाहिए, मतलब वहां बोल देना चाहिए। बात पूरी हो, सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन हमें बोल देना चाहिए। मैं तो बोल देता हूं। चलिए कट टू, अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। 92 एक मुलाकात आपकी सुभाष चंद्रा जी से होती है, आप जी न्यूज ज्वाइन करते हैं। आपकी अदालत जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो कैसे हुआ अचानक? देखिए आपकी अदालत कोई प्लान्ड शो नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई मैंने सोचा हुआ था कि मैं ऐसे आपकी अदालत करूंगा, ना मैंने कोई टीवी देखता था। एक इंसिडेंट हुआ, गुलशन ग्रोवर जो कि फिल्म एक्टर है वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तो गुलशन ग्रोवर और मैं मुंबई जा रहे थे दिल्ली से। उसी फ्लाइट में सुभाष चंद्रा भी थे, कि उस समय थोड़े ऐसे फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। और जो पार्ले के ओनर थे रमेश चौहान, उनको भी मैं जानता था, वो भी थे। गुलशन ग्रोवर ने मुझे कहा कि ये तू इससे बात कर रहा था, ये दाढ़ी वाले से, इसको जानता है? तो मैंने कहा मैं जानता हूं, ये सुभाष चंद्रा है, इन्होंने ये एसएल वर्ल्ड चलाते हैं और इनका राइस का बड़ा बिजनेस है। तो उसने कहा नहीं, इसने अभी एक चैनल शुरू किया है। तो मैंने कहा वो एक जी टीवी शुरू किया है जिस पर प्रोग्राम होते हैं, जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी। तो मैंने कहा मैं उसके लॉन्च में भी गया था। तो उसने कहा यार अगर इसके चैनल पर मेरा इंटरव्यू आ जाए तो मेरा फायदा होगा, मेरा रेट बढ़ जाएगा। तो मैं एडिटर था उस समय डेली न्यूज़पेपर का, तो बड़ी एरोगेंस थी एडिटर की। मैंने अरे इसको कह देते अभी ऐसी क्या बात है। तो मैं सीट से उठ के गया, तो मैंने कहा भाई सुभाष जी हमारा दोस्त है, इसका इंटरव्यू कराओ अपने जी टीवी पर। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, तो आप कर दो उसका इंटरव्यू, हम दिखा देंगे। तो सवा मुझे इंसल्टिंग लगा कि मैं इतने बड़े अखबार का एडिटर, मुझे गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी कि 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, कौन देखेगा उसको? तो रमेश चौहान भी वहां खड़े थे। रमेश चौहान ने मुझे तो फिर क्या देखेंगे लोग? मैंने कहा देखो नेताओं को बुलाओ, कटघरे में बिठाओ, उन पर इल्जाम लगाओ, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगो, पब्लिक सामने हो, और फिर लोग देखेंगे। अब मैंने करीब 10-12 मिनट का एक लेक्चर दिया इन लोगों को कि क्या देखेंगे, क्या होना चाहिए। फिर अनाउंसमेंट हो गया, अपने अपनी सीटों पे आके बैठ गए, लैंड कर गए। कुछ 6-7 दिन बाद मुझे सुभाष जी ने फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा मैं आ जाता हूं। नहीं मैं आऊंगा मिलने। तो वो डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस में वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे काम था। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा वो जो आपने एक प्रोग्राम सजेस्ट किया था। ऐसा कौन सा प्रोग्राम? वो कहेंगे वो जो आप कहते कि कटघरे में बिठाओ, अदालत लगाओ। मैंने कहा मैंने तो कोई प्रोग्राम नहीं सजेस्ट किया। तो कहेंगे नहीं वो जो प्लेन में आपने बताया था। अरे मैंने कहा सुभाष जी मैं वैसे हवाबाजी कर रहा था, वो ऐसे कोई प्रोग्राम होता है क्या, कौन आएगा? कहेंगे नहीं आप सोचो। उन्होंने बहुत कहा। तो मैंने कहा जी अब मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ये मुझसे गलती हुई, अब छोड़िए उसको। तो उन्होंने कहा आप सोचिए। हफ्ते भर बाद फिर उन्होंने फोन किया, आई मस्ट से क्रेडिट गोज टू हिम, ही सॉ समथिंग इन इट। तो मैंने कहा मैं आपके ऑफिस आ रहा हूं। फिर मैंने उनसे कहा देखिए मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगता हूं, मैंने बहुत बकवास की थी, ये कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने अपने क्रिएटिव लोगों से डिस्कस किया है और वो कहते हैं कि आप ही कर सकते हैं, मैं उनको आपके पास भेजना चाहता हूं। तो मैंने कहा चलो वो भी भेज दो। तो करुणा समतानी उनकी क्रिएटिव हेड थी और कमलेश पांडे
कमलेश पांडे को मैं जानता था, ये सुभाष घई की फिल्मों के लिए डायलॉग राइटर थे, तो सुभाष घई को मैं सेट पे मिलने जाता था, मेरे दोस्त हैं, वहां कमलेश जी मिलते थे। तो इन दोनों ने आके मुझे कन्विंस किया कि ऐसा शो हो सकता है। तो मैंने कहा तो कर लो। आप नहीं आप करेंगे। मैंने कहा मैं क्यों करूंगा। तो लेकिन उन्होंने कहा अच्छा करके तो देखो, ट्राई तो करो। दिस इज हाउ आई एग्री। और ये बात है नवंबर 1992 की, और 12 फरवरी 1993 को पहला शो आपकी अदालत का रिकॉर्ड हुआ, और 13 मार्च 1993 को वो पहला शो टेलीकास्ट हुआ। लालू जी, लालू यादव। दैट चेंज माय लाइफ। एंड ओवरनाइट आपका एकदम। हाँ, उसके बाद पता ही नहीं क्या हुआ कि फिर लोग पहचानने लगे सड़कों पे। मुझे लगा मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। वो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑलटुगेदर। बहुत ही पहला शो लालू प्रसाद यादव का, दूसरा खुशवंत सिंह का, तीसरा केपीएस गिल और चौथा टीएन सेशन। ये चारों शोज एक के बाद एक सुपर हिट हो गए। 30 साल का लंबा सफर पूरा कर चुके हाँ, हैं। अब 31 साल करीब हो गए। 31 साल पहले की बात है। रजत जी, अब थोड़ा सा ना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, तो मुझे लगता है फेलियर्स की जरूर होनी चाहिए। एक शो करना एक बात होती है किसी एंकर के लिए, और एक शो का सफर एक चैनल तक चला जाए, और कई बार क्रिएटिव लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो पाते, तो जाहिर सी बात है आप बहुत बार फेल हुए होंगे। चाहती हूँ वो आज शेयर करें कि कैसे इंडिया टीवी कैसे खड़ा हुआ। इंडिया टीवी की जो परिकल्पना है, जो पूरा प्रोसेस है, थॉट है, ये इससे शुरू हुआ था। मुझे लगता था कि अगर अपनी बात कहने के लिए आजादी चाहिए, क्योंकि पहले मैं ये जी पर करता था, फिर बाद में आपकी अदालत और आज की बात स्टार पर करने लगे। स्टार पर रूपर्ट मर्डॉक उसके ओनर थे, और मुझे लगता था एक फॉरेन एंटिटी के लिए मैं शोज करता हूं, उसकी अपनी लिमिटेशन हो सकती हैं, कुछ अपना करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये क्लैरिटी नहीं थी, कुछ करना चाहिए जिसमें हो। फिर ये सब सोचते सोचते एक दिन ये ख्याल आया कि चैनल अपना लॉन्च करें। तो चैनल लॉन्च करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, उतना तो पैसा था नहीं। फिर ये बताया किसी ने कि बैंक से लोन मिल सकता है। बैंक से लोन के लिए कोलेटरल की जरूरत थी। कोलेटरल कहां से लाते? और मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरा तुम पर भरोसा है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसको तुम थर्ड पार्टी कोलेटरल ले दो। फिर अलग अलग बैंक में जाते थे तो कोई थर्ड पार्टी कोलेटरल मानने को तैयार नहीं था। आज मैं ये बात बता सकता हूं बड़े गर्व से, J&K बैंक के चेयरमैन थे खान साहब, किसने मुझे कहा कि एक बार उनको मिलने जाओ, वो तुम्हारे बड़े फैन है। तो मैंने कहा फैन है तो 100 करोड़ सूद दे देंगे यार, फैन से क्या, फैन होगा तो शो देख लेंगे, ताली बजा देंगे। तो कहा कि मिलो तो सही। और वहां हमने अप्लाई किया हुआ था लोन के लिए, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा बैठे, तो मैंने कहा जी आपको मालूम हो गया कि हमने यहां लोन के लिए अप्लाई किया है। तो उन्होंने कहा ये सारी फाइलें हैं, इनको अलग हटाओ। मैंने कहा हम कोलेटरल चलेंगे, आप मत ये सब बात करें, आपकी बस का नहीं ये सब बताना कि क्या कर सकते हैं। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। आपका काम है न्यूज करना, चैनल चलाना, मेरा काम है लोन देना। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता, मुझे आपकी शक्ल पे भरोसा है, आप मेरा लोन जल्दी वापस करेंगे, आपका लोन सैंक्शन। माय गॉड, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और उसके बाद से मेरे मन में एक ही प्रेशर था, कैसे जल्दी से जल्दी ये वापस करें। और जिस दिन वो लोन मैंने वापस किया, फिर मैं उनको मिलने गया, तो उन्होंने कहा नहीं अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे पता था आप करेंगे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अंदर मन में ऑनेस्टी हो, जज्बा हो, और लोग आपको प्यार करते हो, आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हो। मुझे सबसे खुशी इसमें यह बात की थी कि उन्होंने मेरे हुनर को, मेरे काम को, मेरे ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज किया और उसके बेसिस पर विश्वास किया। यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक बार एक ऐसा मौका आया था जब लगा था चैनल नहीं चलेगा, इसको बेचना पड़ सकता है। ये बात भी ठीक है। साल भर बाद में, साल भर तो वो इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती है। अच्छा, हमने भी बहुत बड़ा सेटअप खड़ा कर लिया था
अपने नाम के हिसाब से लगता था, लोगों को लगे। तो और हमने बहुत जो प्रोग्रामिंग बनाई थी उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग तरह की थी। हमने उसमें रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ इश्यूज, वुमेन वेलफेयर, ऐसे मेनका गांधी को एनिमल वेलफेयर का एक शो करने के लिए रखा था, एक मधु केशवर को रखा था एक वुमेन वेलफेयर पर शो करने के लिए, अनिता एक शो करती थी एनिमल वेलफेयर, तो रूरल वेलफेयर पर। तो अलग अलग तरह के थे, न्यूज के साथ साथ ये करते। और मेरा बड़ा पैशन था कि ये रियल जर्नलिज्म है, ये आदर्श पत्रकारिता है, यही देश के लिए होना चाहिए। लेकिन उसको कोई देखता नहीं था, लोग तारीफ बहुत करते थे, और जो एडवर्टाइजर है वो कहता था आपकी रेटिंग नहीं है, परसेप्शन बड़ा अच्छा है। रिजल्ट ये था कि पैसा खत्म हो गया, और एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। जो थोड़ी बहुत हमने प्रॉपर्टी बनाई थी उसको गिरवी रखा, फिर तनख्वाह दी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जो वाइफ की ज्वेलरी थी वो सारी हमने बेच दी। हर महीने की 27 तारीख को ये अंदर से तकलीफ शुरू होती थी, अब 2 तारीख को सैलरी देनी है, नहीं देंगे तो ये सब लोग जो अपने अपने घर छोड़ के रजत शर्मा के साथ काम करने आए वो क्या सोचेंगे। फिर जब प्रॉपर्टी चली गई, ज्वेलरी चली गई, तो फिर एक दिन मैंने, मेरी वाइफ ऋतु, वो एक्चुअली पार्टनर है और लाइफ की पार्टनर नहीं है, बिजनेस की पार्टनर है, और जो बिजनेस एस्पेक्ट है वो ही देखती है। पैसे जुटाना, पैसों का हिसाब रखना, ये उनका तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि 25 तारीख के बाद से रात में उनको नींद नहीं आती थी। शी वुड स्टार्ट एंड शी वुड नॉट टेल मी। बहुत, जब बिल्कुल गले तक पानी नहीं आ जाता तब तक मुझे बतानी थी। वो चाहती थी मैं अपना काम जो मुझे आपकी अदालत करना है, जो न्यूज करना है, वो मैं करता रहूं। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये तकलीफ बर्दाश्त के बाहर है, तो मैंने उनसे कहा कि अब देखो ऐसा है, हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे ये नहीं चलता, लेट अस नाउ सेल इट ऑफ। एक बायर भी मिल गया, और फिर मैंने अरुण जेटली को बताया कि हम इसको बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यार इसको बेचो, और तुम फिर हमारे साथ आ जाओ पार्टी में, तुम्हें पैसे, इतना पैसा मिलेगा, इस पैसे से तुम एक बड़ा मकान खरीदो, उसके अंदर रहो, और वो जो उन्होंने पूरा हिसाब बना दिया, इतना पैसा बैंक में जमा करा दो, उससे इतने में तुमको मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तुम्हारा खर्चा चलेगा, बाकी तुम हमारे काम आओगे। लेकिन फिर एक दिन जब हमने तय कर लिया, बातचीत हो गई, जब हमें लगा कि अब हफ्ते 10 दिन बाद हमें हैंडओवर करना है, उस दिन रात को मैंने कहा यार देखो एक बार और कोशिश न करके देखें। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये जितने लोग यहां आए हैं ना काम करने के लिए, ये लोग अपने घर में अपने पेरेंट्स को ये कह के आए होंगे एक दिन कि रजत जी के साथ जा रहे हैं, वो एक चैनल खड़ा कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बनेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। मैंने कहा वो सब लोग क्या सोचेंगे? मैं इन सारे 700 लोगों को किसी और अखबार के ओनर के यहां एम्प्लॉय बना दूंगा। मैंने कहा अपना तो जो होगा सो होगा, लेकिन इनका ख्याल है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूं। अगले दिन मैंने अपनी कोर टीम की मीटिंग बुलाई, उनसे पूछा कि हमारी रेटिंग क्यों नहीं आती? उन्होंने कहा सर ये जो आदर्शवादिता आपकी है उस पर तो रेटिंग आ नहीं सकती। तो मैंने किस चीज पर रेटिंग आती है? बाकी चैनल्स की कहां रेटिंग आती है? तो उन्होंने कहा कि ये एक जी पर एक प्रोग्राम आता है काल कपाल महाकाल, उसकी बहुत रेटिंग आती है। एक आज तक पर प्रोग्राम आता है खौफ। तो मैंने कहा वो क्या है? कहने का वो भी भूत प्रेत का प्रोग्राम है। तो उन्होंने मुझे हर चैनल के ऐसे, एक स्टार न्यूज का प्रोग्राम है वो सब गिरा दिए। तो और मैंने कहा इस जो न्यूज है उसमें किस, उन्होंने कहा पिछले हफ्ते जो सबसे ज्यादा न्यूज में जो रेटिंग आई थी वो आई थी जब आज तक ने चलाया था बिना ड्राइवर की कार। फिर एक किसी ने जी ने शो किया था नाग नागिन का डांस। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि मैंने कहा फिर हम यही करते हैं, ये सब लोग एक एक दो दो कर रहे हैं, हम सारा दिन यही काम करते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन सर वो आपकी इज्जत। मैंने कहा यार इज्जत तो वैसी भी जा रही है अगर
तो मैंने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम आधा घंटा ये रेटिंग वाली चीज दिखाएंगे और आधा घंटा न्यूज दिखाएंगे। न्यूज सच्ची होगी ये चैनल के लिए। तो फिर सबने कहा सर आप सोच लो। तो मैंने कहा भाई अब मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग तैयार हो? तो उन्होंने कहा सर अगर आप डूबने को तैयार हैं हम आपके साथ डूबेंगे, आप बनने को तैयार हो आपके साथ बनेंगे, तो देखा जाएगा। तो हमने वो पूरे की पूरी चेंज किया। हम नंबर 8 चैनल थे, 8 में से 8 ही चैनल होते थे, हम 8 से 7 हुए, 6 हुए, 5 हुए, 4 हुए, नंबर 1 चैनल बन गए विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 मंथ। एडवर्टाइजिंग बरसने लगी, बैंक का पैसा दे दिया, जिनसे उधार लिया था वो दे दिया, जो गिरवी रखे थे वो छुड़ा लिया। एंड तो फिर वी बिकेम स्टेबल सक्सेसफुल चैनल। फिर मैंने एक दिन फिर सबको बुलाया, मैंने कहा यार अब ये बहुत हो गया, अब पैसे आ गए, लोन दे दिया, अब फिर से बदलें। फिर से क्या? तो मैंने कहा अब इसको प्योर न्यूज चैनल बनाते हैं। उतनी आदर्शवादिता में भी नहीं जाएंगे, लेकिन न्यूज लोग देखें और ये सब बंद कर देंगे, ये सब ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा सर इसमें रेस में हार भी सकता है। मैंने कहा अब देखा जाएगा, अब कोई ये नहीं कहेगा कि ये फेल हो गए, अब मेरे माथे पर फेलियर नहीं लिखा जाएगा। अब अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं, एक बार हमने सक्सेसफुल चैनल करके दिखा दिया है, पैसा कमा के दिखा दिया है। बट आप लोगों की, व्यूअर्स की कृपा रही, सबका सपोर्ट मिला, वो करने के बाद भी फिर रेटिंग गिरी नहीं। क्या? और उस समय रेटिंग न गिरे इस डर से मैं 3 घंटे रोज लाइव एंकरिंग करता था, 8 बजे से शाम को 11 बजे तक, 3 आवर लॉन्ग आई यूज्ड टू डू अ शो कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें हम तरह तरह के न्यूज ब्रेक करते थे। और वो 3 घंटे से हमको बहुत, क्योंकि चैनल का चेहरा आप ही थे। हाँ। चेहरा पहचान, उससे बहुत रेटिंग मिलती थी। तो फिर उसके बाद लाइफ में फिर अब कभी ये जब सक्सेसफुल हो गया, अब फिर कभी पीछे देखने का फिर मौका नाग नागिन के पास नहीं जाना। नहीं। अब इट रियली बिकेम ए सक्सेसफुल एंटरप्राइज, रिजर्व भी हो गया, बैंक के लोन भी दे दिए, अब तो हम किसी को लोन दे सकते हैं। क्या बात है, वाह। इन अ वे आपने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया है, बट अगर आप फिर थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहें कि आपने जैसे कहा कि सिद्धांतों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता या मैं झुक नहीं सकता, लेकिन यहाँ सब बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, झुकना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई बार अपनी इज्जत छोड़नी पड़ती है, बिजनेस ऐसे ही खड़ा नहीं हो पाता। तो वो जब आपके लिए एक सिचुएशन आती है कि या तो यहाँ जर्नलिस्टिक एथिक हो गया, या मेरा पर्सनल बिलीफ हो गया, या यहाँ बिजनेस की मजबूरी हो गई, चैनल के लिए करना है, हाउ डू यू डिसाइड? 2 चीज होती है, एक तो बिजनेस की जो मजबूरी है वो आपको इस तरफ धकेलती है, लेकिन फिर वो आपकी लाइफ नहीं बन जानी चाहिए। आपको कभी थोड़ा समझौता करना पड़े, जैसे तूफान आता है तो घास झुक जाती है, वो बच जाती है, बड़ा पेड़ है गिर जाता है क्योंकि वो अड़ के खड़ा रहता है। तो कभी कभी आपको झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, लेकिन वो नॉर्म नहीं बन जाना चाहिए। फिर ये नहीं है कि अब आगे सारे यही काम करते रहूंगा, बहुत सारे तरीके होते हैं, फिर आप वही करते रहिए, उससे पैसा बनाते रहिए, वो जरूरी नहीं है। आपका जो पैशन है, आपका जो हुनर है, आपकी जो वैल्यूज हैं, वो रहनी चाहिए इंटैक्ट। वो कॉम्प्रोमाइज करते वक्त भी वो वैल्यूज इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये आपका एक ट्रांजिशन फेज आप जिसको कह सकते हैं, कहीं ना कोई एक बैलेंस बना के चल सकते हैं अगर। हाँ, उस समय भी वो ये नहीं होना चाहिए कि आप उस रास्ते पे चले तो फिर आप खुद ही भूत प्रेत बन के वहां नाचने लगे। एक और स्किल की बात आपसे समझना चाहेंगे, एक एंकर होना और फिर एक टीम का लीडर होना। मैंने पहले भी ये कहा, बहुत फर्क होता है। आप एंकर है, अपना काम कर लिया, घर चले गए, तो लीडरशिप स्किल्स थोड़ा सा, ये आप जो छात्र राजनीति में रहे, इस थी आपके पास पहले या बहुत अक्वायर की, या इवन एज अ लीडर यू फेल्ड मेनी टाइम्स? नहीं, बड़ा मुश्किल है इसको एनालाइज करना। एक्चुअली दिस इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट, आप नेचुरली लीडर बन जाते हैं। और मैं एक चीज में बिलीव करता हूं और आप सब लोगों को ये समझना चाहिए, और ये मैंने जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा था, उनके एक भाषण में एक लाइन सुनी थी जो मेरा मोटो बन गई। लीडर वो होता है जो लीड करे, जो लोगों को फॉलो करने लग जाए वो लीडर नहीं हो सकता। ज्यादातर लीडर लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं और उनकी बात को फॉलो करने लगते हैं। दैट इज सर्टन डिजास्टर। लीडर वो, गांधी जी लीडर है, गांधी जी ने तय किया आंदोलन करना है, गांधी जी का नहीं करना है,
जयप्रकाश जी ने वहां आंदोलन में खड़े होकर कहा था उनसे कि देखो आप मेरे पास आए हो, आप मुझे कह रहे हो उस आंदोलन को मैं लीड करूं, तो मैं लीडर हूं, मैं कहूंगा मेरी बात सुनोगे, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अल्टीमेट फाइनल फैसला मेरा होगा। जो मेरी बात नहीं मानना चाहते वो मैदान छोड़ के जा सकते हैं। वो मैंने जीवन में अप्लाई किया है। मैं लीडर हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लीड करूंगा फ्रॉम द फ्रंट, और अगर मेरे साथी 8 घंटे काम करेंगे मैं 10 घंटे काम करूंगा, वो 10 काम करेंगे मैं 12 काम करूंगा। सबकी बात सुनूंगा लेकिन फाइनल फैसला मेरा होगा। कब तो मतलब कभी आपकी टीम को ये लगता है कि आप रिजिड हैं ज्यादा? नहीं, बल्कि वो उनको लगता है मैं जरूर से ज्यादा लिबरल हूं। क्योंकि हम जब प्रोग्राम डिस्कस करने बैठते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आज की बात की, रोज हमारी एडिटोरियल मीटिंग होती है, 9 बजे प्रोग्राम होता है, 4:30 बजे एक एडिट मीटिंग होती है। उसमें जो टीम है वो एक स्टोरी सजेस्ट करते हैं कि ये सर ये करना चाहिए। उन सबका अनुभव मेरे मुकाबले बहुत कम है, तो मैं कहता हूं नहीं यार मुझे नहीं ये ठीक लग रही। उनमें से कोई एक का कह सकता है कि नहीं सर एक बार आप सुन तो लीजिए इसको डिटेल में। अच्छा सुना, फिर मैंने कहा नहीं भाई इसको छोड़ दो। मीटिंग जब खत्म होने लगती है तो उनमें से कोई तीसरा फिर से उठाता, सर वो जो उस समय आपने कह रहे थे छोड़ दो, एक बार आप सोच लो सर। 90% आई गिव इन कि अच्छा अगर इतना कह रहे हो तो इसके अंदर कुछ होगा, चलो देखते हैं करते हैं। तो उनको ये आजादी महसूस होनी चाहिए कि वो अपनी बात मुझे कह सकते हैं, मुझे ये आजादी महसूस होनी चाहिए कि मैं अपनी बात उनको कह सकता हूं, बट समबडी विल हैव टू टेक ए फाइनल कॉल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फैसला है, और इसके जो प्रॉस कॉन्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव है, वो मैं उसकी जिम्मेदारी है। चलिए आपकी अदालत पर आते हैं। 31 साल और इतने गेस्ट, मतलब एक वीडियो में तो सारे समा भी नहीं सकते, लेकिन अलग तरीके से मैं जानना चाहूंगी किसी गेस्ट से आपने बहुत कुछ सीखा हो, या आप 2-3 गेस्ट के नाम लेना चाहें, कोई एक सीरियस या फनी इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें, और क्या कभी किसी गेस्ट पर इतना गुस्सा आया कि लगा बस इसको निकाल दो स्टूडियो से? आपने जो कहा ना सारी बातें आपकी अदालत में हुई हैं, जितने भी गेस्ट आए हैं, अब 31 साल हो गए, 1000 से ज्यादा लोग आ चुके होंगे, और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अचीव किया है, जिन्होंने कुछ हासिल किया है। और ज्यादातर लोग, किसी को मैं जानता हूं, कोई दोस्त हैं ऐसे आए, और हर कोई कुछ न कुछ सिखा के जाता है। लेकिन 2-3 चीजें जो मैं यहां जो लोग हैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, वो इतने बड़े लीडर थे, उनकी ओरेटरी को कोई जवाब नहीं था, और मैं समझता हूं पिछले 100 साल में ऐसा कोई ओरेटर ना हुआ हिंदुस्तान में, ना होगा, ना आने वाले 100 साल में ऐसा हो सकता है। इतना कमांड और लैंग्वेज, जिसको कहते हैं जिनकी जबान पर सरस्वती विराजमान थी, उनको आपकी अदालत में लाना, उनके साथ शो करना मुश्किल काम था। वो शो हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, वो प्रधानमंत्री बन गए, 13 दिन प्राइम मिनिस्टर रहे। मेरा कोई संपर्क खास रहा नहीं, मेरे लिए तो शो हो गया था। वो शो काफी हिट था, लोगों ने देखा था। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तो एक ऑफिशियल डिनर में अटल जी ने मुझे देखा और कहा कि आप हाजिर होइए साहब। मैंने कहा जी मतलब? तो आपको हमारे सामने हाजिर होना है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे थे। जैसे मैंने उनसे पूछा था आपके चेहरे की लाली का राज क्या है, मैंने उससे ये भी पूछा था डू यू ड्रिंक। तो अब उस जमाने में ऐसे सवाल पूछना मुश्किल था, और उन्हें सबके जवाब दिए थे। तो मुझे लगा वो बुला के मुझे डांटेंगे। उन्होंने बुलाया और कहा अच्छा बैठिए। उनकी बातों में हमेशा लंबा पॉज होता था। अब मेरा दिल धड़क रहा है कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं। उन्होंने कहा साहब हमें आपसे कुछ कहना है, और आज आप बोलेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे। मैंने कहा आप बड़े हैं, आप कह सकते हैं। नहीं साहब, हमारे दिल पे बोझ है, हम इसको हल्का करना चाहते हैं। 3 बातें हमें आपसे कहनी है। पहली बात, हम आपके आभारी हैं। हमारी प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये बात अपने आप में इतनी बड़ी थी कि मुझे नहीं समझ आया कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं। मैंने कहा अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है पब्लिक। इसलिए नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा।
ये कौन सा साल की बात है? 95 ये 98। 98। दूसरी बात, हम क्षमा प्रार्थी हैं, 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, आपसे मिल नहीं पाए। तो मैंने कहा जी 13 दिन में कितने? नहीं साहब, आपसे मिलना चाहिए था। और तीसरी बात, उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया कि हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। वो उसके बाद थोड़ी देर चुप रहे, उसने कहा कि अब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमारा बोझ उतर गया। मैं तो स्टंट था, मुझे समझ नहीं आता क्या रिएक्ट करूं। 3-4 दिन तक मैं रात को सो नहीं पाया। आई केप्ट टर्निंग इन बेड की इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी बात। अच्छा, चूंकि दो लोगों के बीच की बात थी और मेरी यह फितरत है कि मैं दो लोगों के बीच की बात को कभी पब्लिकली कहता नहीं, और जब तक वो जीवित रहे मैंने ये बात शेयर नहीं की। इतनी बड़ी बात थी, और उस चीज ने मुझे यह सिखाया कि आप जो काम करते हैं उसको अगर इतने बड़े लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन्होंने पब्लिकली इतना कुछ अचीव किया है, तो इसका मतलब है उस काम में वाकई में हुनर में ताकत है और उसको और ज्यादा पैशनेटली करना चाहिए। दूसरा इंसिडेंट जिसने मुझे बहुत अंदर तक हिलाया वो था सलमान खान का। जब हमने इंडिया टीवी लॉन्च किया तो हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे। एक हमने, ये जब हम रेटिंग के लिए लड़ रहे थे तो हमने एक कास्टिंग काउच किया था, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कैसे होती है। तो उस समय सलमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया टीवी को और मुझे बहुत गालियां सुनाई, ये क्या समझते हैं ये वो। फिर हमने भी सलमान खान के खिलाफ 2-3 स्टोरीज की। फिर हमने एक गोविंदा का टेप चलाया जिसमें वो दाऊद की पार्टी में डांस कर रहे हैं। गोविंदा सलमान के दोस्त थे, तो फिर उनकी डिफेंस में भी उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, मीडिया को कहा। तो हम भी फिर कोई मौका नहीं छोड़, और ये तकरार चल रहा था। तो सलमान खान को आपकी अदालत में बुलाने का तो कोई चांस था नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे एक दिन अप्रोच किया, और शत्रु जी से मेरी बात अच्छी है, इमोशनल रिश्ता रहा है हमेशा। उन्होंने कहा कि भाई सोनाक्षी को लॉन्च कर रहे हैं सलमान दबंग 1 में, तो सलमान के साथ एक आपकी अदालत करो जिसमें थोड़ी देर के लिए सोनाक्षी को भी फीचर कर दो। तो मैंने कहा शत्रु जी आपके लिए मेरा इतना मन में सम्मान है, मैं जरूर करूंगा, कोई सवाल ही नहीं पाता, लेकिन सलमान को लाएगा कौन? वो तो आएगा नहीं मेरे शो में। क्या बात करते हैं, मैं लाऊंगा। तो आप, मैंने कहा ठीक है, टाइम तय हो गया। सबने मुझे कहा वो आएगा ही नहीं, बट शत्रु जी आ गए, सोनाक्षी आ गई, सब लोग आ गए। फिर सलमान खान वी लैंडेड, और वो मेरा जो ऑफिस में हम लोग सब बैठे हुए थे, स्टूडियो नीचे है, तो वो आए और ऐसे खड़े हुए। तो मैंने कहा कि बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा कि प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना है सर? फिर तो मैंने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे न पूछूं? मैं सोच रहा था थोड़ा ईज आउट, तो कुछ भी पूछो सर। रितु जी प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, तो मैं उनको अलग ले गया। मैंने कहा इसके साथ तो मैं शो नहीं कर सकता हूं, ये तो वहां कुछ बदतमीजी कर दे, झगड़ा कर दे, तो मुझे कुछ कहना पड़े, और ही इज नॉट ओपनिंग अप। तो उन्होंने कहा देखो ये बिल्कुल गलत होगा। ऑल द वे वो आया है, इतनी हॉस्टिलिटी के बावजूद वो आया है। अब जैसा भी है शो तो करना चाहिए। देन आई सेड सेट पे वहां ऑडियंस के सामने तकरार होगी, तो शी सेड कि ऐसा करो शत्रु जी को जज बना दो इस शो में, क्योंकि वो उनको बहुत रेस्पेक्ट करता है, मानता है उन्हीं की वजह से वो आया है। तो मैंने शत्रु जी से बात की, तो मेरे कहते हाँ जरूर जरूर। तो हमने शत्रु जी को ले गए, और सलमान, अब शो शुरू हुआ। तो नॉर्मली कटघरे में जब एक्यूज जाता है तो मैं इनवाइट करता हूं, वो आता है, वो बैठ जाते हैं, वो खड़े हैं वहां कटघरे में।
मैंने कहा बैठिए, मैं सर हर कोर्ट में खड़ा ही रहता हूं। अब वो शो कैसे बनेगा? तो मैंने कहा देखिए बैठना है। कहता ये सर आपका कटघरा थोड़ा नीचा है, इतना ऊपर तक होना चाहिए था सर, ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं कोर्ट में। तो मैंने चतुर जी से कहा, मैंने कि जज साहब, तो उन्होंने कहा खामोश, मुल्जिम अपनी जगह पर बैठे। तो मैंने देखा वो बैठ गया। तो मुझे लगा ये फॉर्मूला ठीक है, जब जब कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अपने जज साहब के पास चला जाऊंगा। बट देन शो स्टार्टेड और समहाउ ही केम इन माई स्पेल। बात करते करते पहली बार ब्लैक बक के केस के बारे में डिटेल में बात की, फर्स्ट टाइम। नॉर्मली आप कभी सलमान के इंटरव्यू देखेंगे तो वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, ये पूछ रहे आप पूछ रही हैं वो उधर देख रहे हैं, कुछ देख रहा है, खड़े हो गए, वहां चले गए, कोई उनका, लेकिन ही स्टार्टेड टॉकिंग। फिर मुझे लगा अब ये बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने वो जो रोड एक्सीडेंट था गाड़ी वाला, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में डिटेल में बताया कि कैसे गाड़ी थी, क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या किया, रिएक्ट किया। फिर मुझे लगा अभी बात करिए, तो मैंने ऐश्वर्या राय के बारे में पूछा, तो उस पर भी उन्होंने डिटेल में बात की। फिर मैंने कटरीना का पूछा। आप उंगली पकड़ के पहुंचा। हाँ, मुझे लगा कि अब मौका है तो चलिए। देन ही टोल्ड मी, सर बहुत क्लास ले रहे मेरी आप। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा, नहीं सर मुझे भी। तो मैंने कहा आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। पूछना क्या है सर? वो कटघरे से उठे, फिर आ गए बीच में, और मैं खड़ा हुआ था, तो मुझे कहा सर ये टाई ढीला करिए सर। तो मुझे लगा कि हाँ तो मार पिटाई होने वाली है। कहा ऐसा ये बटन खोलिए, सब बैठिए जमीन, सर पुशअप पोजीशन में आ जाइए, और सर पुशअप लगाते हैं। तो अब शुरू हुआ 1 2 3 4 10, तो उनको लगा था मैं 5-6 के बाद तो गिर ही जाऊंगा। जब 10 11 15 16 हो गए, देन ही लुक में, सर तगड़े हो आप तो। तो देन ही गॉट अप, ही हग्ड मी, ही सैट डाउन, वी फिनिश्ड द शो। वो शो बहुत ही बड़ा हिट हुआ। नरेंद्र मोदी के बाद में जो शो था वो उससे बड़ा हिट मोदी जी को हुआ बाद में, बट सलमान खान दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम वाज द बिगेस्ट एवर हिट। क्या बात है। क्योंकि सलमान के फैन नहीं है, सलमान के सपोर्टर्स हैं। अब मेरे मन में यह बहुत था कि सलमान ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। अच्छा, मेरा तो फिर कोई कांटेक्ट था नहीं, बात नहीं कर सकते थे। शत्रु जी को पूछा, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा। आमिर खान के नेफ्यू की वेडिंग का रिसेप्शन था, तो मैं अनिल कपूर और अनुपम खेर इनके साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। मैंने देखा कि सलमान इज वॉकिंग टूवर्ड्स मी। तो मैंने ऋतु जी से कहा, मैंने यार ये पब्लिक में पता नहीं क्या कर दे पार्टी में, तो यहां से निकलते हैं। तो मैं उधर से हटके दूसरी तरफ चला गया, तो मैंने देखा ये उस तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी से कहा, मैंने कहा हम ये पार्टी से ही चलते हैं, अब हो गया। तो ये पता नहीं क्या कह रहे, आई हैव इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, जो कुछ मैंने सुना है। तो ऋतु जी ने कहा मैं जाती हूँ। शी वेंट, एंड फिर वो उसको साथ में लेके आए। उन्होंने कहा नहीं, वो सिर्फ तुमसे कुछ कहना चाहता है। ही हग्ड मी, और उनका जो मुंह था यहाँ मेरे कान के पास था, एंड ही वाज सेइंग सर 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 सर, कमाल कर दिया आपने सर, सर कमाल। एंड देन ही रिलीज मी एंड ही सेड सर टाइगर ऑफ सर। एंड वो जो आंख में, उनके हग में जो पैशन था, वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। सो मच ऑफ अफेक्शन, सो मच ऑफ लव इन दैट। और उसके बाद खैर हम दोस्त बन गए। टुडे ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एंड मुझे लगता है बहुत कम लोग इतने पैशनेट और इतने हेल्पफुल है जितना सलमान है। ही इज अ वेरी वेरी बिग स्टार, बट उसके अलावा बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, मुझे लगता है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं थोड़ी सी क्वेश्चंस अब स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के भी सवाल लेने हैं। लेकिन आपने अभी जो बात की उससे जुड़ा मेरा एक सवाल पहले से लिखा हुआ था। आपका फिटनेस मंत्र क्या है? फिटनेस मंत्र आपका? मुझे लगता है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिटनेस का मतलब है आपको डाइट पे कंट्रोल रखना है, आपको रोज रेगुलरली वर्कआउट करना है,
और इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आपको टाइम मिलता है, जिम वगैरह जाते हैं, क्या हाँ, करते हैं? मैं 1 घंटा रोज निकालता हूँ। 9 to 10 इज मॉर्निंग माई फिक्स। जैसे 9 से 10 रात को आपकी आज की बात का टाइम फिक्स्ड है, सुबह 9 से 10 मेरा जिम का टाइम फिक्स्ड है। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ जर्नलिस्ट, दोनों काम बहुत स्ट्रेस वाले हैं। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? पहले मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था शुरुआती दिनों में, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस मुझे आपकी अदालत से होता था। जब आपकी अदालत की जिस दिन रिकॉर्डिंग है तो सुबह 4 बजे मैं उठ के तैयारी करता था, और मैं देखता था कई बार नवंबर दिसंबर में सब लोग रजाइयों में सो रहे हैं, मैं बाहर बैठा हूं, ठंड भी लग रही है, कंबल पैर पे डाला है, फिर पढ़ रहा हूं, फिर कभी नींद भी आ रही है, लेकिन शो तो करना ही है। फिर एक दिन मैंने अपने आप को समझाया कि ये करना तो है ही, रो के कर लो या हंस के कर लो। तो इसको मैं हंस के करता हूं, एंड इट चेंज माय लाइफ। जो भी काम करता हूं, स्ट्रेस से बड़ा काम होगा, मैं ये सोचता हूं करना तो है, अब इसको खुशी से कर लूं या रो के कर लूं। अगर रोने से जल्दी हो जाता तो शायद कर लेता, लेकिन आई चेंज माई सेल्फ, नाउ आई एंजॉय एवरीथिंग दैट आई। अब मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेता। लेकिन जिस दिन आपकी अदालत का शूट होता है, आपकी टीम ने मुझे बताया आप उस दिन किसी से बात नहीं करते, शूट खत्म होने तक रजत जी डज नॉट टॉक टू एनीवन। वो एक 1.5 दिन मैं किसी से बात नहीं करता हूं, और वो पूरा फोकस मेरा शो पर रहता है। और अगर आप शो शुरू होने से 5 मिनट पहले आप मुझे मिलेंगी तो मेरे पैर कांप रहे होते हैं, मुझे पसीना आ रहा होता है, मुझे लगता है कि शायद आज मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं मन में सोच रहा होता हूं कि आज ये छत गिर जाए, आज ये लाइट फेल हो जाए, बस आज कैंसिल हो जाए, कल करूंगा। और वो 31 साल हो गए, हर शो से पहले यही रहता है। और अब वो ऋतु जी तो इस बात से परेशान भी हो गई, वो मुझे कहते हैं अरे यार, वो मैं कहता हूं ना बड़े मुझे लग रहा है, डर रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द, और कोई लोग कहते हैं कि सर को कुछ दे दें, होते नहीं सर ऐसे ही है, छोड़ दो। वो जब उनकी आवाज मेरे कान में पड़ती है, 10 seconds टू गो, 9 seconds टू गो, और जब लाइट कैमरा एक्शन, देन इट चेंजेस। अच्छा, अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। मैं अपना रिजर्व 1 लास्ट क्वेश्चन। जी माइक चाहिए। माइक दे दीजिए ऑडियंस में। रजत जी, गुड इवनिंग। एंड ये इतना जबरदस्त आपसे इंटरेक्शन, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप इतने पैशनेटली और इतने इंटीमेटली अपने लाइफ की स्ट्रगल शेयर की। मेरा आपसे एक सवाल है, प्री इंटरनेट ईरा और पोस्ट इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, आई वुड से नॉट इंटरनेट, प्री सोशल मीडिया, पोस्ट सोशल मीडिया, जो इंफॉर्मेशन का डिस्कोर्स है, इतने सारे लोगों की ओपिनियंस है, इस चेंज से आपने जो एक टिपिकल टीवी ब्रॉडकास्ट मॉडल से आपने अपने एपिसोड्स एयर करे, अब आप डिजिटल में भी, मैंने देखा यूट्यूब पे भी बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, आपने इस चेंज को कैसे अडेप्ट किया, क्योंकि यू आर फ्रॉम सच अ लॉन्ग लेगेसी शो? देखिए, पहले तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। जो प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल, ये 3 तरह के मीडिया है। क्रेडिबिलिटी में प्रिंट आई वुड से इज द हाईएस्ट। ब्रॉडकास्ट के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे एक जमाने में, वो बदल गए डिजिटल मीडिया की वजह से। डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर लोग को ट्रस्ट नहीं है, वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। सोशल मीडिया पर आप जो खबर देखते हैं वो फिर आप चेक करते हैं हमसे कि वो मुझे रोज 50 मैसेज आते हैं, क्या ये सही है क्या गलत है, किसका कौन सा वीडियो किस नेशन का हमारे कह के डाल दिया। ये एक मेजर फर्क है। जब इस मेजर फर्क को समझ लेते हैं तब ये भी पता चल जाता है कि ये जो वो वाइड स्प्रेड हो सकता है, एंटरटेनिंग हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी योर सोर्स फॉर न्यूज। बहुत बड़े जनरेशन में, यंगर जनरेशन में लोग कहते हैं कि वो उसको कंज्यूम करते हैं अपने फोन पे, लेकिन वो कंजम्पशन अब कम हो रहा है। लोग जो ब्रॉडकास्ट मीडिया पर जो देखते हैं उसको अपने फोन पर, उसको अपने आईपैड पर, उसको अपने इंटरनेट के जरिए देखना शुरू कर रहे हैं। ये एक बड़ा चेंज है। तो वी आर कंटेंट प्रोवाइडर्स, कंटेंट वही है, सिर्फ उसको लोगों तक पहुंचाने के तरीके बदल गए हैं, जिसको आप डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया कह सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो गॉसिप,
अफवाह, झूठ, Fake news. इस पर टिका हुआ है, फेक न्यूज। और उनका एक बहुत बड़ी कोशिश ये है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, उसको डिस्क्रेडिट करें, उसको गाली दें, उसके बारे में तरह तरह की बातें कहें, उसके बारे में लोगों के मन में डाउट पैदा करें, इन विच दे हैव फेल्ड। रजत जी, इससे मिलता जुलता सवाल है, जैसे लोग सोशल मीडिया पे न्यूज कंज्यूम करते हैं तो उसके जो एल्गोरिथम्स हैं सोशल मीडिया के, वो जैसे राइट विंग को एक्सट्रीम राइट विंग दिखाएगा, लेफ्ट विंग को एक्सट्रीम लेफ्ट विंग दिखाएगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है डेमोक्रेसी में? जैसे हम यूएस में भी देख रहे हैं कि काफी एक्सट्रीम की तरफ दोनों एंड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जा रहे हैं, तो आप इसका प्रभाव इंडिया पे कैसे देखते हैं? आपने जो बात उठाई वो बहुत सटीक सही बात है, जिसका मैं जिक्र किया था कि इन लोगों का काम है मीडिया को डिस्क्रेडिट करना। इसी तरह से ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसका काम है हमारे देश के और बाकी देशों में भी जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको डिस्क्रेडिट करना। पॉलिटिकल एंटिटीज को, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, जुडिशरी को, जो भी इंस्टीट्यूशन है जिनके बल पर हमारी लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी इतने साल से टिकी हुई है। और ये हमारे यहां नहीं, बाकी मुल्कों में भी, अमेरिका में भी ये देखने को मिल रहा है लगातार। और ये जो एल्गोरिथम से आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। वो एल्गोरिथम इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं क्योंकि जो नेगेटिविटी को, गाली को ज्यादा हिट्स मिलते हैं। जो जितनी ज्यादा गाली देगा, जितनी तीखी बात करेगा और जितने बड़े आदमी को गाली देगा, उसको ज्यादा, जो आदमी जितना सफल होगा, जो आदमी जितना ऑनेस्ट होगा, उसको आप गाली देंगे, उतने ज्यादा हिट्स मिलेंगे। और ये एल्गोरिथम इसके हिसाब से बनाई गई है। रिजल्ट क्या है? एन एंटिटी लाइक यूट्यूब, जो अपना कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता, वो इंडिया से एक साल में $2 बिलियन कमा के जाते हैं। $2 बिलियन दे हैव इज देयर रेवेन्यू। हम लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हमको उस कंटेंट से वो वैल्यू, वो हमारा कंटेंट यूज करके उस पर पैसा बनाते हैं, उस कंटेंट को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं। ये एल्गोरिथम है, इस बीमारी को पहचान लिया गया है। और मैं आज आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस बीमारी का इलाज करने की तैयारी की जा रही है। कोई और सवाल है? Sir, can you tell us about the Kangana Ranaut episode? That was a very controversial one. So let's hear it from you. How was it? I didn't get it. The Kangana Ranaut Kangana episode, yeah. That was a super controversial one. So can you tell us about that a little bit? नहीं, कंगना रनौत के बहुत सारे रूप हैं, आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? When she came on your show and she just put the stage on fire with her, with her statements. देखिए, दो शोज उनके साथ किए। एक तो अभी रिसेंटली किया था, लेकिन जो पहली बार उनके साथ शो किया था, दिस इज वेयर शी पुट द एंटायर इंडस्ट्री ऑन फायर। Yes. मैं उनसे नॉर्मली आपकी अदालत में किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना ज्यादा मैं पूछता नहीं हूं, मुझे पता होता है तो भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने अचानक मेरे किसी सवाल के जवाब में क्या पूछा कि आप किसके बारे में कह रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि आपके एक्स के बारे में। कौन सा एक्स? तो मैंने कहा ऋतिक रोशन। फिर उन्होंने जो ऋतिक रोशन की धुलाई है, जो उन्होंने वो नॉन स्टॉप जो उन्होंने बोला और बड़ी अथॉरिटी के साथ बोला, उससे वो शो बहुत हिट हुआ। देखिए, एक बात जरूर है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं देश में जहां भी जाता था, लोग कंगना रनौत की हिम्मत की तारीफ करते थे। और उन्होंने एक बात कही जो बात सही थी। उनके जीवन के बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जिससे हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी ने एक्सप्लॉइट किया है, अगर किसी ने आपका महिला होने के तौर पर फायदा उठाया है, तो उसके खिलाफ लड़िए, उसको स्वीकार करके मत बैठ जाइए। अगर आपने स्वीकार करके बैठेंगे तो फिर वो किसी और के साथ करेंगे। ये मुझे लगता है कि ये जो लेसन है, इस लेसन ने उनके शो को बहुत बड़ा बनाया। और मैं जहां भी गया, एक बार तो हॉस्पिटल में मैं आई चेकअप के लिए गया था,
तो डॉक्टर साहब आए, 4-5 उनकी इंटर्न्स थी, नर्सेज थी, ये लोग खड़े थे। तो वो डॉक्टर साहब ने जैसे वो लगा देखने लगे, उन्होंने रोक दिया कि नहीं डॉक्टर साहब पहले इनसे जरा कंगना रनौत के बारे में बात करनी है। And I thought people in the country, women in the country, young girls in the country believed in what she said. और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपकी अदालत में किसी ने किसी के बारे में बोल दिया, या कोई कुछ ऐसी बात बोल गया जिसको बाद में लगा हो ये उड़ा दो, तो आपको धमकियां या दूसरा फोन करे कि आपने ये क्यों टेलीकास्ट कर दिया, इस तरह की चीजें? एक दो ऐसे सिचुएशन हुए हैं जहां लोगों ने धमकी दी थी कि हम उड़ा देंगे, हमें पता है कि आपकी बेटी कौन सी गाड़ी में जाती है, गाड़ी का नंबर भेज दिया, बम लगा देंगे। ऐसे 1-2 बार इंसिडेंट हुए हैं, बट मैंने बॉदर नहीं किया, मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार ही डरोगे तो लोग डराना शुरू कर देंगे, तो बेहतर है कि बगैर डरे अपना काम किया जाए। या जैसे किसी के बारे, जैसे ऋतिक आपको कॉल कर दें, या सलमान जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको कॉल कर दे, ऐसा नहीं होता? नहीं, सब ये तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरे मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती है, मुझे खुद ही एम्बेरसमेंट हो जाता है। रेणुका चौधरी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मिनिस्टर थी, आपके साथ इंटरफेयर करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा देखिए आपके हस्बैंड, उन्होंने कहा नहीं रजत जी एक मिनट रुकिए। मैंने बताइए आपकी शादी हो गई? मैंने कहा आपका इरादा क्या है? अब कह तो दिया मैंने आपका इरादा क्या है, लेकिन बाद में मुझे खुद ही एम्बेरसमेंट हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया। तो ये ऐसे कभी कभी होते हैं। कोई और सवाल है? So the network that we are part of requires us to be vulnerable and learn from other people's vulnerability. So what I was going to ask you was, how do you make the people you interview so vulnerable and open in a public stage and share things they've never shared before? What are some of the best practices there? I think this is mutual trust. They trust me. They think that I don't have an agenda. They believe that I am not looking for a headline. They believe that whatever I am asking is something which public wants to know, and they come out. I can share this with you. हर शो की रिकॉर्डिंग के बाद जो गेस्ट है मैं उससे पूछता हूं, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है गलती से आपके मुंह से निकल गई, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे नहीं पूछनी चाहिए थी, आप मुझे बता दीजिए, एडिट कर देंगे। 31 years gone, वीक आफ्टर वीक मैं हर गेस्ट से ये पूछता हूं। 99.9% लोग कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बट इससे उनका एक विश्वास बढ़ा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी। कोई और सवाल? रजत जी, जैसे आपने अपने फैमिली लाइफ और बच्चों के लिए, जो कि आई एम श्योर इस जो आपने एम्पायर खड़ा करा है उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप कैसे उनकी परवरिश आपने करी इतने बिजी शेड्यूल के अंदर? इट्स नाइस। आदमियों से भी वर्क लाइफ बैलेंस पूछना चाहिए सब। आई हैव 2 daughters और उन दोनों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यंगर वन इज अ लॉयर, शी इज एन IPR कॉपीराइट लॉयर। वो कभी मेरे साथ पब्लिक लाइफ में दिखना नहीं चाहती, और जब वो छोटे थे तो भी वो आपकी अदालत देखते थे, उनको इतना नहीं मजा आता था। लेकिन एक बार MTV ने मुझे इंटरव्यू किया, उस दिन उनको लगा हाँ पापा कुछ है, MTV ने इनको इंटरव्यू किया। अब नाउ तो दे आर ग्रोन अप, दे हैव अंडरस्टूड, दे आर माय सपोर्ट सिस्टम, दे स्टैंड बाय मी, दे लुक टुवर्ड्स मी फॉर गाइडेंस। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि तुमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मैंने उनको कहा कि मैंने जो मेरा मन किया मैंने किया है, आपके पास ये सुविधा है, जो चाहो करो। और द यंगर वन इज ए गुड सिंगर, शी इज अ ओपेरा सिंगर। तो मैंने बहुत उसको समझाया कि ये रेयर टैलेंट है, आप दुनिया के किसी भी, मैंने कहा हमारे पास तो ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी कि हम कहीं जाके ट्रेनिंग कर सकते, बट यू कैन गो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट ट्रेनिंग। बट शी सिंग्स। सलमान ने एक बार उनको अपनी फिल्म में भी गाना गवाया, बट शी से माई पैशन इज लॉ एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो हमने कभी भी प्रेशराइज नहीं किया। मेरा आखिरी सवाल, इतना
इतना कुछ है आपकी जिंदगी, मतलब मैं कितने क्वेश्चन स्किप कर गई हूँ आज रजत जी। क्या आपकी ऑटोबायोग्राफी कभी पढ़ने को मिलेगी, और अगर हाँ तो उसका नाम आप क्या रखना चाहेंगे? बहुत साल से जब भी मैं कोई बात करता था, कुछ कहता था, जैसे कोई मैंने किसी को कुछ, अब जैसे आज एक सलमान की स्टोरी निकला, कुछ सबसे ये कहते हैं इसको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन नहीं टाइम था, सोचता भी नहीं था। लास्ट ईयर नटवर सिंह जी घर पे आए और 92 उस समय उनके थे, अभी थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हुई है, और वो गाड़ी से उतर के चल के आए, डाइनिंग टेबल पे लंच किया, और फिर जो उनको कुछ ऐसी मैं बातें बता रहा था, माई एक्सपीरियंस विद मुरारजी भाई, माई एक्सपीरियंस विद, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक प्रॉमिस करो, मेरे जीते जी तुम इस सबको एक किताब में लिखोगे। तो मैंने कहा कौन पढ़ता है जी आजकल किताबें? उन्होंने कहा नहीं, ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। फिर उन्होंने ऋतु से कहा कि भाई बेटा मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूं, तुम इसे लिखवाओगी, और उसका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। फिर हमने पब्लिशर से भी कुछ बात करनी शुरू की, कुछ बात हुई, कुछ नहीं हुई, बट मैं पहली बार शेयर कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से लिख दिए। अच्छा, लिखी जा चुकी है? मैंने एक तरीका निकाला कि मैं रोज अपने घर से ऑफिस जाता हूं, और ऑफिस से आते हुए तो नॉर्मली इस पर कॉल्स होते हैं, कुछ होता है, वो नहीं किया। आई वुड डिक्टेट, तो वो जो फर्स्ट कट जिसको कहते हैं वो है, अभी उसको और उसके अंदर बहुत कुछ काम करना बाकी है। कई साल तो इसलिए नहीं वो किताब लिखी गई कि सोचता लिखें, अच्छा लिखने के लिए फिर ऐसा करते हैं, कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां लोग पहचानते ना हो, अच्छा अर्जेंटीना चले जाते हैं, वहां रहेंगे, फिर ये करें, यही योजना ही बनते रही, प्लान 2-4 जगह गए भी, घूम के वापस आ गए, कुछ नहीं लिखा। तो लेकिन अब वो बात बदल गई। अब मैं आपने पूछा है तो इसलिए मैं एडमिट कर रहा हूं कि वो अपनी तरफ से जो फर्स्ट कट है वो मैंने लिख दिया है। बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं, उसको फाइन ट्यून करना होगा, रिफाइन करना होगा। 1-2 पब्लिशर्स हैं जिनसे भी बात चल रही है, बट यहां सारे इंटरव्यूज में बैठे हैं, मैं उस किताब को एक किताब की तरह नहीं करना चाहता। ये जैसे किसी एक राइटर ने किताब लिखी, क्योंकि मैं सिर्फ एक राइटर नहीं, मैं एक लेखक नहीं हूं, लिखना जानता हूं, मुझे भाषा जानता हूं, लेकिन दैट द बुक हैज टू बी एन इवेंट, इट हैज टू बी अ सेलिब्रेशन of the events of the people who have touched my life. So this is what I plan to do. Hopefully अगले साल तक कुछ होना चाहिए। नाम फाइनल हो गया? नाम है लेकिन वो वर्किंग नेम है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट नेम। उसको कुछ करेगा। तो हम उम्मीद करेंगे जब उसका बुक लॉन्च होगा तो हमको जरूर इनवाइट किया जाएगा। थैंक यू सो मच रजत जी, एंड कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रजत जी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग को जवाब देते हैं, लेकिन रिचा ने जिस नफासत के साथ ये सवाल पूछे हैं और जिस गहराई के साथ इन्होंने उस पर तैयारी की थी, वो काबिले तारीफ है। तो 3 cheers फॉर रिचा देव, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।